Okay, so good evening, everyone. Welcome to Change Talks. Change Talks is a platform where we promote the change leaders across various sectors, starting from the development organizations to corporates to business houses, the government, and even the practitioners who are actually practicing various innovations and creating changes in the society. Today we have a very interesting topic to discuss on, which is a cyber crime awareness. During COVID era, it has been seen that various cyber scams has been happened, and which is really a dreadful situation for the country as well as for the whole world. When we are trying to fight with a dreadful disease, the various cyber crimes are happening across the world through various mediums, right? It starting from the email phishing to banking scams to the apps which are stealing the data of our personal information. This way, the world is already been engaged with the disease like COVID-19, and these cyber threats and the cyber crimes are an added thing which we got. Today we have with us Mr. Vibhas Chatterjee, who is a I would like to share the screen where we will brief Mr. Chatterjee today. Uh, so, Mr. Bibhas Chatterjee is a public prosecutor on cyber law and electronics evidence related cases for entire West Bengal, author of Cybercrime Manual in English, Bengali and Hindi, electronic evidence, cyber security and the law, cyber contract, etc. Mr. Chatterjee is the visiting faculty at CDTS under Ministry of Home Affairs, SVSPA, ATI, CID, Cyber PS Kolkata, DSCI, CDSC, NEPA, etc. Mr. Chatterjee is the legal advisor on cybercrime related cases for CID West Bengal, special prosecutor for 6 consecutive cases related or relied on electronic evidences where convictions were awarded. Welcome Mr. Chatterjee to our talk show today. And on behalf of Change Talks and the viewers across Facebook page of Change Talks and Zoom, I would like to welcome you to this panel. Basically, Change Talks is promoting the changes which are there, and any individual are doing any kind of changes. So we know that I would just like to start with a very simple question that when this world is already engrossed with all these cyber threats and cyber phishing, so how, Mr. Chatterjee, you have tried to create some awareness among people through your apps, through your YouTube channel, even through your various interviews across various news channel in Bengal, we know. So, means how it has started, means why you think this is important to aware people on the cyber threats and how you are doing this. See, I fell in love with the subject in year 2010 or 11 when I was in panel as a lawyer. The lawyer in a telecom company, the famous telecom company, and there was an allegation of defacement of website. So in that case, I was appointed or engaged as a lawyer of that company. And I saw the potential, the first time the potential of this field, and everything was converging to a single point: mobile, computer, laptop, everything. Now today we are in the age of Internet of Things. So in that respect, we actually, I saw the huge potential of that subject, and from since then, I'm trying to pursuing this subject and try to do things around or try to make some research work on it a little bit possible within my reach and other capacity. And what I have tried
for the last 5, 6, 7 years, and even after the 2016 when I have been appointed as a special public prosecutor for entire West Bengal for this subject only, I have tried and to apply or execute or put my evidence in various cases along with the digital evidence or electronic evidences. Because you see, in today's world, when the people are actually more than 50-60% of the Indian, and among them more than 80% youth, India are most of the time logged into WhatsApp, Facebook and other things. So every activity of a human being is actually being caught or recorded in the virtual world. So in case of a criminal case or any kind of legal trial or anything, so there is a absolute possibility that the evidence might have been or might be there. So in respect of that, I started my pursuing this subject, and definitely it has, I think, almost become a passion to me. As no longer a profession, it has become a passion. And every day, see, I'm working and trying to make a bridge out of two worlds and two evenly not at all closed or related world. One is the technology, another is the law, and bringing the nitty-gritty details or complexity of the technology and commingling the same with the interpretation of law. And this is a fantastic subject. And I think in our profession, the legal brothers, I think, has to cope up with this scenario, because in the days to come there will be electronic evidence around, and it has already been started. And in normal human being, day-to-day normal things, we cannot say that we'll go back prior 1995, that we're not going to accept internet, because there are so many complaints coming around that, okay, someone's money was siphoned, someone's ATM was hacked, someone's debit card was, the money was siphoned from the bank account. All nasty things are happening every day. In the morning today, I have seen two very dangerous news, one from Russia, another for India. So these are all they happening, and that's why it's a ever ever reaching challenge, and that's why I am pursuing it every day. Yeah. So, Mr. Chatterjee, if you could throw some light on the apps which you have launched, and how it came to your mind that launching an app will create or maximize your awareness initiative to the society, and how it had helped, means if you could share some examples as well. See, when all of a sudden there was an attack from people say it's a bioengineered virus. So I don't know the truth behind it, but this corona and this outbreak of corona, the COVID-19 and all, actually put us in exile, blocked in a room. So when this lockdown was all started, all of it, and because I was so mobile, I have to roam about entire Bengal every day. So I thought what to do, how to utilize this time in this lockdown period. And one thing which came to my mind at that very point of time, to do something which can be beneficial for the people. Say, for example, the people now are more engrossed or more prone, or even you can call people are more forced to transact on the virtual world, contactless world, because, you know, if you come close with the persons, there is absolute possibility that you may be contaminated with the COVID or this thing. So that's why people are becoming more dependent. आज के दुनिया में लोग कोविड के आने से बाद बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड हो गया, ऑनलाइन साइबर वर्ल्ड के ऊपर। पहले तो था ही, और इसका डिपेंडेंस और बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि आदमी को डिपेंड कर रहा है छोटा छोटा चीज के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर। और दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रिमिनल्स और ऑनलाइन क्रिमिनल्स। They are taking this opportunity and they are trying to befool us. They are trying to commit the phishing. They are trying to do all sorts of criminal activities in the virtual world. And the biggest problem, जो सबसे बड़ा problem आज है इंडिया में और इंटर बंगाल और थ्रू आउट इंडिया में, कि अगर कोई बंदा affected हो जाए, victim हो जाए, मतलब सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वो बुका बन जाए, तो वो अगर थाने में जाएगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक कंप्लेन उससे लेगा, और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा ना होगा, इसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी और डाउट है। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेट करेगा वो ऑफिसर लोग तो पहले से कोविड और इसका लॉ एंड ऑर्डर इशू लेके इतना परेशान है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अगर बंगाल के बाहर कहाँ से भी क्राइम हुआ और विक्टिम बंगाल में है
और तो बंगाल का पुलिस जाएगा और इसी टाइम पे उसको अरेस्ट करके लेके आएगा और इन्वेस्टिगेट करेगा. दिस हार्डली बी पॉसिबल एंड प्रैक्टिकली समटाइम्स मे नॉट बी पॉसिबल. सो ऐसे सिचुएशन में it's a golden time. It has become a golden time for the cyber criminal, and that is the reason cyber crime has increased in manifold in this period. But the remedy, what I have thought for the last few years, the best remedy is that public agar khud aware ho jaye, if every single individual become aware who are doing internet work, net transaction, networking, net banking, and everything, then I think the matter will not go out of hand. So what will happen if the people gets aware? So people gets in getting the people aware of the entire situation. The best thing is to educate them, and in doing so, I thought if I can make the cyber law and the nitty-gritties of how to be safe in the virtual world in the mother tongue. Say I have come with a mobile application in the Android. The name is Cyber Law in Bengali. It has become very popular in West Bengal, and what I have done, I have tried to translate every provisions of Information Technology Act into Bengali, so that people can understand and read it and know their remedy available. Same I have done in case of Hindi. Hindi में भी हमने एक साइबर लॉ का ऐप लेके आया, जहाँ मैटर बहुत एग्जॉस्टिवली डील किया गया. बहुत सारे प्रोविजन है. पहला जो अभी प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. उसमें बताया गया कि कैसे एक आदमी आपका साइबर क्राइम से अपने आप को सेव करेगा, अपने आप को सुरक्षित करेगा. तो साइबर अपराध से कैसे बचे एक आदमी, तो उसके हिसाब से मैंने लास्ट पार्ट में सीधा सा कुछ पॉइंट भी बता दिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. इसी सिचुएशन में अगर लोग इसके ऊपर थोड़ा फॉलो करेगा, हमको लगता है कि आने वाले दिन में हेल्प करेगा लोग. इसलिए मैंने ऐप लेके आया. दिस आर ऑल फ्री ऐप एट फ्री ऐप. So we have already shared your apps in our Facebook page. I am sure that people will take a look into those apps, and they will be informed whatever the laws we have in India to fight and combat with these cyber threats. So I would like to the main topic of the session where we wish to talk about the cyber crime awareness. In this COVID time, we have seen several kind of new techniques of cyber threats are coming. Cyber crimes are getting done. So if you could share some tips to our viewers that how in case to case basis, how we can fight with those threats, and or means what are the simple remedies for those things. Okay, सबसे the most important thing is people have to be aware. How they will going to aware? That's a big thing. See, in the internet world or the virtual world, हम लोग को सोचना है, we have to think it out that nothing is original. Most of the things are fake. So false identity or fake news and fake things have become so rampant in this world that we hardly should and can depend on those things. So the first and most important thing when we are entering into the internet, we have to be careful about that. That the whatever जो हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है ओरिजिनल है, लेकिन there is every possibility they original नहीं है. It can be a fake thing. So that's the first point. Second point is that see case to case अगर देखें तो आज सुबह एक इंसिडेंट हम देखे हैं, इसके ऊपर कुछ मीडिया चर्चा भी कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का बेनिफिट और कोविड और दिस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट के लिए 2000 रुपया ऐसे कुछ रुपया सबको दिया जाएगा. इस हिसाब से कुछ मेल और अप्रोच किया गया, इसमें सब कुछ चीज भेजा गया जहाँ द ओनली पर्पस इज टू एल्यूर द पीपल. एंड ये जो एल्यूरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोई एक चीज हम लोग को याद रखना चाहिए, कोई चीज सस्ते में नहीं मिलता है. कोई लॉटरी हमारे पास आ जाएगा, मेल में भेज देगा कि आपको लॉटरी मिलने वाला है, आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. ये हमारे दिमाग में देना पड़ेगा कि ऐसा कुछ ऐसे इजीली नहीं होता है. तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ टोप है, जैसे हम लोग एल्यूरमेंट बोल सकते हैं, तो ये सब चीज जो है इसमें हम लोग विक्टिम हो सकते हैं और यहाँ से हमको निकालना है. जैसे देखिए आज लोग का सबसे बड़ा जो अगर हम देखें इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है जो इंडिया का जीडीपी के आसपास घूम रहा है, वो है कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग फ्रॉड. ये ऑनलाइन नेट बैंकिंग फ्रॉड का बहुत सारे स्टेप होता है. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट
ये आदमी को याद रखना है कि दुनिया में कोई भी बैंक कभी भी किसी को फोन करके कुछ नहीं बताएगा और कुछ नहीं पूछेगा। अगर फोन करके उसको पूछेगा कि भाई तुम्हारा OTP क्या है, तुम शेयर करो, ये तुमको भेजा गया तुम ये करो, मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल पे ये इंस्टॉल कर लो और उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, और उसके बाद वो ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल में पूरा मोबाइल का रिमोट कंट्रोल एक्सेस उसके पास आ जाएगा, और वो चाहे तो जो चाहे तो हमारा मोबाइल से कर सकते हैं। उसी मोबाइल, जिस मोबाइल से हम लोग नेट बैंकिंग करते हैं, जहाँ पर OTP आता है, जहाँ पर ऑथेंटिकेशन कोड वगैरह आता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ टाइम के अंदर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं और हम लोग सॉफ्ट हो जाते हैं कि हमारे अकाउंट से हमारा बहुत हार्ड अर्न मनी निकल जाते हैं। तो ये चीज याद रखना है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप का रास्ता खुला हुआ है क्रिमिनल लोगों के पास, और उन लोग जो क्राइम कर रहे हैं इस वक्त पे, वो रोज अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और ऐसे मॉडिफाई कर रहा है कि नया नया टाइप से क्राइम कर रहा है। तो हमारे दिमाग में कुछ चीज हम लोग को बैठाना चाहिए कि हम कभी भी किसी अनऑथराइज कॉल से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। हमको सोचना है दुनिया का कोई बैंक हमसे कुछ नहीं पूछेगा। कोई मेल आईडी अगर हमारे पास आएगा जहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा भेजने के लिए बोल रहा है, दैट मेल वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। से फॉर एग्जांपल कभी भी ऐसा मेल ICICI कंपनी कभी नहीं भेजेगा जिसका मेल आईडी ऐसा है कि something@ और ICICI@gmail.com। ये कभी ICICI का मेल आईडी नहीं हो सकता। कभी जब होगा तो हो सकता है @ICICI.com। कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में पूरा दुनिया, इंडिया, हर एक इंडियन को ये चेतावनी दिए थे। They have made aware or made cautious to every Indian that there might be attack from the Chinese hackers, and they will attack from a mail ID that starts that ends at the rate of gov.in. See, .gov.in is a registered thing. Now, if we there is an email coming at the rate of gov.in, हमारा डाउट होना चाहिए, और we should not enter into any kind of transaction with this mail ID. तो छोटा छोटा चीज जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए, जो हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं, वो डिवाइस से हम लोग कभी भी कोई अनसिक्योर अनट्रस्टेड लिंक हम लोग को क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई लिंक, बार बार बोल रहा हूँ, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में, लैपटॉप में ये सेम इक्वली एप्लीकेबल है, लेकिन मोबाइल में ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखा गया है कि इंडिया में ज्यादातर लोग 97% इंडियन आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू वायरलेस डिवाइसेस, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोबाइल। आउट ऑफ 8, 7 पीपल आर एंटरिंग इनटू द इंटरनेट थ्रू मोबाइल फोन। अगर ऐसा हाल है तो मोबाइल का सिक्योरिटी, जो छोटा चीज एक डिवाइस है और जो दिन के दिन बहुत छोटा होते जा रहा है, इसका सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसका पासवर्ड होना चाहिए, और ये लॉकिंग सिस्टम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, देखिए एनक्रिप्शन एक ओनली जहाँ पर हम लोग डेटा को और इसको सिक्योर कर सकते हैं। हम लोग जब डेटा भेजते हैं तो डेटा एनक्रिप्टेड होकर आज के दुनिया में जाता है, इसलिए वो डेटा को कोई हैकर इजीली उसको हैक नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पास प्राइवेट की नहीं होता है उसको हैक करने के लिए। इस हिसाब से हमारा जो फाइल अभी जाते हैं वो .txt फॉर्मेट में नहीं जाते। आप एक पासवर्ड बनाते हैं आपका जीमेल में और कुछ जगह पे, वो पासवर्ड उसके पास और टेक्स्ट नहीं जाते, उसका एनक्रिप्टेड पार्ट जाते हैं। तो हम लोग जब एक पासवर्ड देंगे, हम लोग को दिमाग में रहना चाहिए एक मिनिमम पासवर्ड सिक्योर पॉलिसी होना चाहिए। हमारा जीमेल का बोलिए, हमारा फेसबुक का बोलिए, जिसका भी हो, हमारा जो पासवर्ड होगा वो हमको मिक्स्ड पासवर्ड करना चाहिए, और उसमें कुछ हम डिक्शनरी वर्ड कभी नहीं देंगे। डिक्शनरी वर्ड अगर हम देंगे तो डिक्शनरी अटैक बोल के एक अटैक होता है, जहाँ पर वो इजीली हमारा चीज क्रैक करेगा। दुनिया में हम लोग इतने एडवाइस देते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर जो पासवर्ड है वो 1 से लेके 9 तक खत्म होता है, और जो विद इन नैनो सेकेंड जिसको हैक कर सकते हैं लोग। ब्रूट फोर्स तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे अटैक नहीं हो चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमको जो लगता है कि एक पासवर्ड जब हम लोग बनाएंगे, उसमें मिक्स्ड वर्ड, कैपिटल में, स्मॉल कैप में, अपर कैप में, और उसके साथ हमारा कुछ नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर अगर हम दे दें, और कोई डिक्शनरी वर्ड अगर हम लोग यूज ना करें, तो वो पासवर्ड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग।
और बाद टाइम टू टाइम पासवर्ड को हम लोग को चेंज करना चाहिए। हर एक वेबसाइट जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, जिसके बहुत दिन से जो लोग बिजनेस करते आ रहे हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह वगैरह, आज 2-वे ऑथेंटिकेशन के पीछे जा रहा है, तो हमारे पास 2-वे ऑथेंटिकेशन है, उसको हमको अवेल करना चाहिए। और ऐसे हिसाब से थोड़ा बहुत अगर हम लोग, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, अगर कोई नेट बैंकिंग फ्रॉड का शिकार हो जाए, इफ समबडी बिकम विक्टिम और कोई अमाउंट इज साइफन फ्रॉम हिज और हर बैंक अकाउंट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहला होगा ना कि रेमेडी के पीछे भागे, क्योंकि उसका आर्डर बनी। तो दो चीज इसमें देखना है, वो अगर खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं डेटा, मतलब वो खुद डेटा शेयर कर रहे हैं, अगर वो खुद डेटा शेयर करेगा तो उसका कोई रेमेडी नहीं है, दुनिया का कोई बैंक उसको रुपया नहीं लौटाएगा, उसको कॉम्पेंसेट नहीं करेगा। ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर हम लोग इसको देख ले कि अगर हम इसको सोचे देखते कि भाई हमने कुछ शेयर नहीं किया, तो उस हिसाब से हमको रेमेडी मिलेगा। एवं वो रेमेडी क्या है, हम लोग को याद रखना है कि हमको देखना है, हमको देखना है कि जो हमारा आरबीआई का एक रूलिंग आया है 2018 जुलाई में, वहां पर स्पेसिफिकली बताया गया कि अगर हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमने कोई डेटा शेयर नहीं किया है, और ये बैंक का कुछ एरर है और उसका सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसका आउटसोर्स सिस्टम का साइबर सिक्योरिटी इशू है, उसी टाइम पे बैंक is bound to compensate a consumer or a account holder if something can happen, and if the things been reported within 3 days from the date of knowledge। अगर हमारे नॉलेज पे आए कि हमारा बैंक अकाउंट से रुपया निकल गया, कि अकाउंट हैक हो गया, और हमने किसी को ओटीपी वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किए, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, तो हम लोग वो नॉलेज आने के बाद 3 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, हम वो ओटीपी शेयर कर देंगे, एक कंप्लेन कर देंगे कंसर्न बैंक को, और बैंक बाउंड हो जाएगा 10 दिन के अंदर कि इसको जो जितना अमाउंट निकल गया उसको क्रेडिट करना। और अगर ऐसे भी होता है कि भाई हम चाहते भी नहीं थे, लेकिन हम लोग को ऐसे हिप्नोटाइज किया जाता है। हमने बहुत सारे लोग को देखे हैं जो बहुत एडुकेटेड है लेकिन फिर भी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। नॉट ओनली नेट बैंकिंग फ्रॉड, आज एक और फ्रॉड बहुत पॉपुलर हो गया है, हम लोग जिसको बोल सकते हैं कि आप देखेंगे ये एक क्या बोलते हैं इसको, गूगल एनालिटिक्स और एनालिटिक्स बोल के एक चीज हमारे सब्जेक्ट दुनिया में आ गया, जहाँ पर डेटा को एनालिटिक्स करके एक आदमी को टोटल पिक्चर बना सकते हैं कोई मिसिंग। तो ऐसे इन लोग क्या करते हैं, फेसबुक में जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स करते हैं, सब डेटा कलेक्ट करते हैं, वहां से निकाल लेते हैं कि कौन सा लड़की अनमैरिड है, उसका किसका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, वो कौन विडो है, जो भी है, जिसका पीछे आगे कोई नहीं है। तो ऐसे देखने के बाद उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, और उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे बुला लेते हैं, उसका ट्रस्ट विन ओवर कर लेते हैं, उसको ऐसे लेवल पे ले जाते हैं कि वहां जाके वो लेडी उसको बिलीव करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद उसको समझाते हैं कि भाई मेरा ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, तुम इतना रुपया वो करो। कुछ ऐसा भी है वो उससे वो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट टाइम पे वो क्या करते हैं कि उसका प्राइवेट डेटा भी ले लेते हैं, उसका प्राइवेट पिक्चर ले लेते हैं, और बाद में जब वो समझ जाते हैं कि भाई हमने ट्रैप में पड़ गया और रुपया नहीं भेजते हैं और इनकार करते हैं कि मैं रुपया नहीं भेजूंगा, तब देखा जाता है कि वो बोलता है, ब्लैकमेल करते हैं, अगर तुम रुपया नहीं भेजोगे तो तुम्हारा जितना भी फोटोग्राफ्स है मैं अपलोड कर दूंगा। ये जो हमारा जो ऑनलाइन रोमांस का खेल चल रहा है आज, ये बहुत गंदा खेल, इट्स अ वेरी डेंजरस एंड malicious game is going on। and ये सुन के तुमको हैरान होगे लगेगा कि ऐसा बाकायदा इन लोग एक कॉर्पोरेट स्टाइल में दिल्ली और डिफरेंट पार्ट, इवन ऐसा भी है एक क्राइम करने के लिए नाइजीरिया का लोग भी बंगाल इंडिया में आया है, और इन लोग बैठे बैठे क्राइम करते हैं। बहुत सारे क्राइम को क्रैक किया गया। मेरा ही कुछ केस है जहाँ पर देखा गया कि नॉन नेशनल इंडियन they are doing it in sitting in India, not हम लोग को सोचना अभी नहीं है कि नाइजीरिया में बैठ के कर रहा है, वो तो हो ही सकता है। इंडिया में बैठ के कॉल सेंटर के नाम पे उन लोग ये कर रहे हैं, उनका काम ऐसा ही है, सूटेड बूटेड होके ऑफिस जैसे लोग जाते हैं ऐसे जाते हैं, लेस्बियन लाइफस्टाइल होता है, और इन लोग को ठग लेते हैं और वहां से रुपया निकाल लेते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसका पिक्चर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। सो ये चीज हम लोग को सोचना है कि देखिए आज इंटरनेट में जितना लोग हैं वो जाते हैं, अगर ये पूरा पॉपुलेशन को हम लोग एक जगह पे लेके आए तो ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा। तो इतना बड़ा कंट्री का, इतना बड़ा वर्चुअल कंट्री का
आप खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, दुनिया में ऐसा है। अगर आप रास्ते में जाएंगे पैदल और गाड़ी में जो भी है, आपको याद रखना है कि यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक पॉलिसी और ट्रैफिक रूल्स। अगर आप जब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप देख के नहीं क्रॉस करेंगे तो देयर इज एवरी चांस यू मेट विद एन एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो इन द सेम वे व्हेन हम लोग जब साइबर वर्ल्ड में जाते हैं तो हमको भी देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना सिक्योरिटी और अवेयरनेस को मेंटेन करते हैं। ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि ये तो अलग से झमेला आ गया, नया चीज आ गया, इनकन्वीनियंस आ गया। नहीं, जो आपको कन्वीनियंस देगा उसके साथ इनकन्वीनियंस टैग होके रहेगा। आपको सोचना है अच्छा चीज लेना है तो बुरा चीज आपके पास आएगा। बुरा चीज से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर कोई कॉशियस रहता है और मिनिमम कुछ स्टेप्स फॉलो करे, जैसे अगर आप चाहते हैं आपका कोई बैंक में अकाउंट है और आप चाहते हैं नेट बैंकिंग करेंगे, द बेस्ट पॉलिसी टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू द मोबाइल ऐप और द ऐप ऑफ द बैंक इटसेल्फ, not to any third party or other software, because there is every time there is a possibility of fraud. और ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। Nobody should think in this way that the information we are getting from the Google are all authentic. ऐसा कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था। हमारा एक नोहाटी बोल के एक प्लेस है जहाँ पर एक बंदा ऑनलाइन में सर्च किया व्हाट इज द डिटेल्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ नोहाटी, और उन्होंने देखा कि देयर वाज इंफॉर्मेशन इन द गूगल एंड देयर वाज ए मोबाइल नंबर देयर, और उन्होंने उसी मोबाइल नंबर पे कॉल किया और उन्होंने उनको आंसर दिया गया कि ही इज द मैनेजर ऑफ दैट बैंक, और उसके बाद उससे बातों में फंसा के उससे अकाउंट से 1,85,000 निकाल लिया गया। तो ऐसा चीज बाद में देखा गया दैट्स नथिंग बट ए जामतारा लाइक गैंग दे आर डूइंग बिजनेस। द पॉइंट इज दैट जामतारा लाइक गैंग, जामतारा वाज पायनियर इन दिस टाइप ऑफ फिशिंग एंड क्राइम। बट एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, झारखंड का जामतारा अब पूरा इंडिया में स्प्रेड हो गया और बहुत छोटा छोटा पॉकेट है। ये बंगाल में भी बहुत सारे जगह है, हम लोग को जितना पता है, आप आसनसोल ले लीजिए, बहुत सारे जगह है यहाँ पर लोग बकायदा बिजनेस कर रहे हैं, इसको बिजनेस बना के कॉर्पोरेट स्टाइल पे कर रहे हैं। कुछ दो चार स्पोरेडिक इंसिडेंट ये है नहीं, अभी बहुत ऑर्गेनाइज वैसे क्राइम होता है। क्या करे, लोग को बोलेंगे। हमने जब बहुत सारे लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जामतारा का बात किए थे एक बार, क्योंकि झारखंड का जो साइबर पीएस इनॉग्रेट हुआ था, हम खुद वहाँ थे, तो तब बात हो रहा था ऑफिसर से, उन्होंने भी बोला सर हमारा इधर में पीएस में जितना भी ऑफिसर है उसमें ज्यादातर बहुत ओल्ड एजेड ऑफिसर्स है, यहाँ को टेक्निकलिटीज इतना मालूम नहीं है, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ले आने के लिए। बट फिर भी अगर एक चीज हम लोग को याद रखना है, जो भी जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और पुलिस जितना भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे एक क्रिमिनल और एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दोनों में बहुत गैप है। जो क्राइम कर रहा है इन लोग बहुत एडवांस है, इतना एडवांस है कि इन लोग को आसपास में भी घूम कोई नहीं सकता। दैट इज व्हाई द रीजन जो इस टाइप ऑफ प्रोसिक्यूशन जब हम लोग करते हैं, इस टाइप ऑफ केस में प्रोसिक्यूशन करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाते हैं, बहुत टफ हो जाते हैं, बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अप टू दैट। उन लोग को एविडेंस कभी कभी मिलता नहीं है, और एविडेंस छोड़ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जामतारा से गैंग आता है, अरेस्ट होके एक उधर का, अब एवरीडे जाएंगे तो देखेंगे 10-20 डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया का ऑफिसर आके वारंट लेके हाजिर हो जाते हैं, वहां से क्राइम हुआ है, और किसी को अरेस्ट करके लेके आएगा, 2-3 दिन के बाद बेल होके निकल जाएगा छुप के। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ज्यादातर सेक्शन जो क्रिमिनल सेक्शन है वो बेलेबल है, और उसका बेनिफिट इन लोग को मिल जाते हैं। और ट्रायल भी इतना जल्दी नहीं हो सकता है, ट्रायल का बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन नंबर ऑफ इंस्पेक्टर, क्योंकि आईटी एक्ट में नंबर इंस्पेक्टर छोड़ के और उसके नीचे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बोलूंगा आज एक प्रोग्राम तुम्हारा जो भी देखते हैं, हु इज द व्यूअर टुडे, द बेस्ट रेमेडी इज टू बी अवेयर सो दैट कोई हमको फुल नहीं बना सकते। Nobody should befool us, and if nobody can befool us, we don't have any problem of things. So recently, you see, we have a very there is an enmity with the neighboring country called China, and repeatedly different agencies, even lastly on 29th, there's a press release by Government of India where 59 apps has been banned. Or the Government of India has expressed its intention to ban. Now, in those lists, there was a TikTok, there is a Hello app, there is a Camscam, there is Share It and other apps.
And there are people in India who are addicted to the TikTok, who are addicted to this mobile application. And the biggest problem, this is not a problem of an individual, this is a problem of the entire nation. The security and the privacy of every Indian and the nation as a whole is at stake. Because you see, if 70% of Indians' data are in the server of the Chinese mobile app companies, and when in the Chinese government, as the people say in various parts of the world, that Chinese government has indirect direct control on the server of the person or the corporate entity who are doing business in China. In that respect, there is every possibility that that the government sponsored crime or hacking may happen, or even there can be interception on those data. And you see, today there is a news coming out that in Russia, these the cyber criminals are actually using the Google Analytics, and thereby they are using the net banking data, and thereby they are siphoning the money from the bank account, crores and millions of rupees. So in this present scenario, if see today, the more a person got the data, the more powerful he is. कोई कंट्री के पास जितना डेटा रहेगा, इसीलिए आज बिग डेटा का लड़ाई चल रहा है दुनिया में. अगर हमको लगता है अगर दुनिया में कभी थर्ड वर्ल्ड, हम कोई नहीं चाहते कि हो कि सिविलाइजेशन का विनाश हो, कोई ये नहीं चाहता है, लेकिन अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो डेफिनेटली इट हैज टू बी अ साइबर वॉरफेयर और ए डिजिटल और ए डेटा वॉरफेयर. जिसके पास जितना डेटा है वो उतना पावरफुल है, और उस हिसाब से डेटा जिसके पास होगा उतना पावरफुल है. इस हिसाब से हमारा डेटा को हमको थोड़ा संभल के रखना है. हम लोग अगर हमारा टोटल प्राइवेट पार्ट, अगर हम एक घर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, एक बिल्डिंग के अंदर हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा खुद का, हमारा फैमिली का, हमारा डेमोक्रेटिक पैटर्न, हमारा घर का, हमारा जियोग्राफी का, एवरीथिंग has been captured by those video, and that can be in the hand of the enemy country, and they can use it for the wrong purpose. Because data जब उनके हाथ में होगा, आज के जमाने में अगर आप कोई ड्रोन को ऐसे प्रोग्राम कीजिए कि ड्रोन एक गूगल मैप के साथ कॉन्फ़िगर होगा, तो वो ड्रोन जाके किसी के घर पे उसके लैट लॉन्ग देने के बाद वो किसी के घर में जाके वो बम फेंक के आ सकते हैं. So this is the world or scenario we are in every day. And another very dangerous crime which is now coming up, एक के बाद एक information आ रहा है, वो है साइबर स्टॉकिंग और साइबर मेंटल टॉर्चर और साइबर साइको टॉर्चर. ये बहुत बढ़ गया. कैसे होगा? There are people who are coming to me telling that there can be brain hacking and all this. I don't believe in this concept because I don't think that there can be of that level of technology which can directly, because हमारा ब्रेन को अभी तक हमारा न्यूरोलॉजिस्ट खुद पढ़ नहीं पाए. हम लोग जितना भी पढ़े हैं उससे पता चलता है कि हम लोग एक बंदा जितना भी इंटेलिजेंट हो 3 to 4% से ज्यादा ब्रेन को पूरा जिंदगी में यूज ही नहीं कर पाते. So it's a mystery what is there in our brain. But एक चीज हो रहा है जो मैं स्ट्रेट कर देख रहा हूँ कि किसी के नाम पे फेसबुक अकाउंट बनाना, किसी के नाम पे व्हाट्सएप अकाउंट बनाना, किसी के पिक्चर अपलोड कर देना, किसी के घर के ऑनलाइन पे पॉर्न साइट पे उसका डिटेल्स बना के दे देना और बोल देना कि भाई इसके घर में ऐसा ऐसा होता है. लोग वो देख के आ जाते हैं. ऐसे इंसिडेंट हमारा बंगाल में, कोलकाता में एक इंसिडेंट में अनफॉर्चुनेटली हुआ था. तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आ रहा है, दोज आर वल्नरेबल और वीक माइंड, और उनको एक के बाद ऐसे सिस्टम बना के उनको ऐसे स्टॉक किया जाता है और बुलिंग किया जाता है. Big problem. And another very important point is that child and ladies are a very vulnerable sector in India, in the third world country. और मैं बोलूँगा कि लेडीज लोग और चाइल्ड लोग को फेसबुक पे आके अपना जब भी पिक्चर देना है, थोड़ा अपने आप को थोड़ा देख के संभल के करना है. क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में अगर हम लोग क्लिक कर दे सेंड के बटन के ऊपर, तो डेटा के ऊपर हमारा और कोई कंट्रोल नहीं रहता है. वो हमारा कंट्रोल के बाहर निकल जाते हैं. हम जितना भी बोले वो हमारा उसको हम लोग कॉल बैक नहीं कर सकते. तो इसको दिमाग में हम लोग को रखना है और बार बार एक चीज देखना है कि कभी भी कोई फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं तो उसको वेरीफाई करके ही उसको एक्सेप्ट करना है. और कोई भी अकाउंट में कुछ भी जगह पे अपना प्राइवेट पिक्चर, अपना लेस्बियस पिक्चर, अपना कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर, ऐसा पिक्चर जहाँ से हमको आइडेंटिफाई किया जाए, इसको ना शेयर करें तो अच्छा है.
Thank you, Mr. Chatterjee, for your very enriching speech, and whatever the techniques you have shared with us, that will be the best remedies ever to combat with these cyber crimes. So the last and the end note from you, we would like to focus on. That is, you have told that don't share anything personal or don't share anything which can be used by the other the criminals. So but give us very few, means five such things which shouldn't be shared in social media or through any apps. Any five things. We should not share any kind of compromising picture or like that thing which is portraying ourselves, our body image and everything. That is one point. Number two, we never and should not share any children's or child's picture into the virtual world, because that can be can create havoc. ऐसा देखा गया है कि उनका फेस को ओनली यूज करके बाकी किसी और का बॉडी बना के एक नूड पिक्चर बना के मॉर्फ उसको स्टॉक किया जा सकता है. तो शेयरिंग द चाइल्ड डेटा एंड चाइल्ड फोटो एंड एवरीबॉडी हैज टू बी वेरी कॉशियस. नंबर 3, एक चाइल्ड को जब मोबाइल फोन दिया जाता है उसके ऊपर बहुत निगरानी रखना जरूरी है. Every guardian has to periodically go and see what the children are doing, because एक खेल चल रहा है वर्चुअल वर्ल्ड पे, वो है ब्रेन वॉशिंग का गेम. बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है जो ओनली ऑनलाइन को यूज कर रहे हैं और जहाँ से उन लोग वहाँ उनका जिहादी ग्रुप में एक रिक्रूटमेंट के लिए यंग ब्रेन को ले रहा है. तो इसको देखना है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था एक पेरेंट्स हमारे पास आया इस कंप्लेंट लेके कि उसका लड़की रातों रात तक बहुत रात तक बात करता है, व्हाट्सएप करता है, चैट करता है, और फेसबुक में जितना भी फ्रेंड है वो डिफरेंट एरिया का है और उन्हें जिहादी वगैरह होता है. और जब अंदर में जाके उन्होंने जाके देखा पेरेंट लोग, तो देखा कि ऑलरेडी एक डॉगमेटिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप उनका ब्रेन को वॉश कर रहा था. और वहां से उसको ऐसा भी हुआ था that girl was ready, the minor girl was ready to go to Kashmir and via Kashmir to Syria. So that was the thing we might happen. अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में मिलेगा केरला से बहुत सारे बंदा सीरिया तक चले गया था. बंगाल से भी ऐसे इंसिडेंट्स हम लोग सुने हैं. तो ये जो जा रहा है, इनका जाने का पहला जो अप्रोच है ब्रेन वॉश का, जैसे हम लोग हीरो राजा देश बोल के एक बंगाली में बहुत पॉपुलर सिनेमा है सत्यजीत रे का, वहां पर आप देखेंगे ब्रेन वॉश तब उस टाइम पे कैसे होता था और आज के जमाने में वर्चुअल वर्ल्ड के माध्यम से होता है. तो ये बात सही है. फोर्थ जो है नेट बैंकिंग डेटा, कभी भी पिन वगैरह वगैरह कुछ भी हम लोग को शेयर नहीं करना चाहिए थ्रू वर्चुअल वर्ल्ड और एनीथिंग. और हम लोग को कभी भी भूल के भी ये चीज नहीं शेयर करना चाहिए जहां से हमको ठीक से आइडेंटिफाई किया जाए, हमारा पासवर्ड निकल जाए. और कुछ भी ऐसा ऐप जो सब ऐप को लेके आते हैं, और स्पेशली मैं बोलूंगा आज गवर्नमेंट बार बार हम लोग को चेतावनी दे रहे हैं और हम बार बार इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम लोग आगे आके इस बैनिंग प्रोसीजर को सक्सेसफुल ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि एवरी ऑलरेडी डाउनलोडेड ऐप बैन हो जाए और अनयूजेबल हो जाए. क्योंकि ये नहीं हो सकता कि चाइनीज कंपनी यहाँ इंडिया में बिजनेस करेगा, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और चाइना गवर्नमेंट को टैक्स देगा और वहाँ का रुपया लेके वो फंड करेगा और हमारा वीर सैनिक को बॉर्डर में मारेगा. ये नहीं हो सकता कभी. तो इसका और एक उससे भी उसी जैसे जगह से और एक डेंजर है कि हमारा इंपॉर्टेंट डेटा निकल सकता है, और ये डेटा अगर निकल जाएगा तो उनके लिए वायर करना युद्ध करना बहुत इजी हो जाएगा. तो कुछ भी डेटा शेयर करने से पहले हमको देखना है और हमको सोच के आगे बढ़ना है. देयर आर सो मेनी सिक्योरिटी पॉलिसीज. हम लोग हमारा डीपी को लॉक कर सकते हैं, कोई उसको डाउनलोड नहीं कर सकता. ऐसा बहुत सारे सिस्टम है, उसको अगर हम लोग थोड़ा स्टडी कर ले इंडिविजुअल लेवल पे, उसके बाद हम लोग इस पे यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. So thank you, Mr. Chatterjee, for giving your time for us, for our viewers, and we think that this has enoughly created awareness, and through your apps and through your other initiatives, it will maximize this discussions effort, and we are looking forward to keep our countrymen, keep all our citizens safe and secure through all the awareness initiatives which you have launched.
So our best wishes to you from Change Talks, and thank you very much for joining us today. Thanks every participants who have joined through Facebook, through LinkedIn, and through a Zoom webinar for joining with us today. And thanks again, Mr. Chatterjee.